Ma'am, I think we can start. Okay, sir. So, good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon. Perfect. So, some of you were there yesterday also. Yesterday, sir discussed a lot of topics related to MS Excel, right? Those who were not present yesterday, just to give you an introduction, this is a short term course on advanced MS Excel. So, we'll be learning various concepts of MS Excel, right? You might have read about MS Excel in your first semester also, लेकिन तब आपने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था. हम वो भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, साथ साथ में आगे की भी बहुत सारी चीजें of advanced MS Excel we'll see in this particular short term course. Fine. So we'll be meeting daily till Saturday, apart from 26th of January, right? From 2 to 4. And in the end, you'll be filling up some feedback, and you'll be getting a e-certificate also for participating in this particular short-term course, right? So I hope to see you guys daily now. Fine. So to start with, today the concepts that we will be covering is we'll see how we can insert various pictures, charts, or shapes, or hyperlinks, or headers and footers in an Excel sheet. Then we'll be seeing various formulas and functions. We'll be discussing about various text-based functions. We'll be discussing about various logical functions. And if time permits, then we'll see some of the mathematical functions also. Otherwise, for mathematical functions, we'll have the session, a detailed session, day after tomorrow or after that day, probably on Thursday or Friday. Okay. So to start with, first of all, we'll see how we can insert pictures in our Excel. Excel is kind of a table. एक tabular format में हम data को डालते हैं, तो उस tabular format में can we insert a picture in a cell, or can we insert a specific shape in a particular cell, और उसको हम कैसे fix कर सकते हैं, कैसे उस पे काम कर सकते हैं, that we'll see to start with. Okay, so just give me 1 minute. Let me screen share with you, and then we'll start. Is my screen visible now? Yes, ma'am. Okay. Fine. So सबसे पहले हम एक picture insert करना देखेंगे in any of the cells in an Excel sheet. I hope you guys can see the Excel sheet in front of you on the screen. है ना? मैं एक सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ so as to insert a picture into that. ठीक है? Now increased the cell size 7E. इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया है so that आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, है ना? अदरवाइज हम छोटे पे भी कर सकते थे. Now let's try to insert a picture into this particular cell 7E. You can go to the insert tab. In insert tab, we'll go to illustrations, and there we have this option pictures. ठीक है? तो इस pictures पे जाकर हम क्लिक करेंगे, and let us insert a picture from this device only. We can insert a picture from online pictures also, लेकिन for the time being मैं इसी device से एक picture को भी pick करती हूँ और उसे यहाँ पर insert करती हूँ. Fine. So this is a big picture, right? अभी एक बड़ी सी picture insert हो गई है. I want to fix it into this particular cell only. मैं ये चाहती हूँ कि ये इस cell में ही आ जाए. तो let me reduce the size. लेकिन अभी भी साइज बड़ा है ना?
आई वॉन्ट कि एग्जैक्टली इसी सेल में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसे ट्राई करती रहूं इस तरह से, और आई कैन ट्राई टू फिक्स इट इन दिस पर्टिकुलर सेल। उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एन ईजियर मेथड इज दैट यू सिलेक्ट दिस पिक्चर एंड यू प्रेस द ऑल्ट की। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप उसे रीसाइज करने की कोशिश करो, तो वो एग्जैक्टली उस सेल के साइज में आके अपने आप रुक जाएगा। उसके बियॉन्ड फिर वो कर्सर उसको और छोटा नहीं करेगा। So now I hope all of you can see that my picture is exactly inserted into this particular cell 7E. Is it? Yes, ma'am. Okay. But the problem is अभी इस 7E का जितना साइज है उसमें तो ये फिक्स हो गई है। जैसे ही मैं इसका साइज बड़ा कर रही हूँ या छोटा कर रही हूँ, तो फिर मेरी पिक्चर उसमें नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना? If I increase the column width, see, पिक्चर तो उतनी रह गई, सेल मेरा बड़ा हो गया। इफ आई इंक्रीज द रो विड्थ, तो भी पिक्चर मेरी उतनी ही रह जाएगी, सेल मेरा बड़ा हो जाएगा। सो टू अवॉइड दिस, ठीक है, कि हम जब अपने सेल को रिसाइज करें तो ये जो पिक्चर मैंने एक बार इस सेल में डाल दी है वो भी अकॉर्डिंगली रिसाइज होनी चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, दिस इज अ सेकेंड स्टेप। हमने पिक्चर इंसर्ट कर लिया, पिक्चर को एक सेल में फिट कर लिया। नाउ वी वांट कि फॉर फ्यूचर जब भी हम इस सेल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी पिक्चर का साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज हो पाए अलोंग विद द सेल। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन द पिक्चर, राइट क्लिक करना उस पे। ठीक है, फॉर्मेट पिक्चर्स पे हम क्लिक करेंगे। Now in format pictures, we will go to this option size and properties. In size and properties, we have this option. The first option says move and size with cells. ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। As soon as I select this option, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। Now let's see. Now if we increase the size of column, the picture size is also increasing accordingly. If I increase the size of row, the image size is increasing accordingly. हो रहा है ना? अब वो उसकी जो एक तरह से हमारी जो बाउंड्रीज हैं इस पर्टिकुलर सेल की, उसके साथ अलाइन हो गया है, और जैसे ही हम उस बाउंड्रीज का साइज चेंज कर रहे हैं, पिक्चर का साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। राइट, सो दिस इज द बेस्ट वे वी कैन इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, कि हमने उसे सेल के अंदर फिक्स किया, उसे रीसाइज करके हम सेल के साइज पे लेके गए, एंड देन वी हैव फिक्स्ड इट टू द सेल बाउंड्रीज, कि अब अगर हम सेल का साइज चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारी पिक्चर का साइज भी चेंज होगा। ठीक है, एक और तरीका मैं बताती हूँ टू इंसर्ट पिक्चर। अब हम इंसर्ट करते हैं G7 में। अभी हमने E7 में किया था, अब हम G7 में इंसर्ट करके देखते हैं यूजिंग अनदर मेथड, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, करना हमें वहीं से है। विल गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में विल गो टू इलस्ट्रेशंस, इन इलस्ट्रेशंस आई विल गो टू शेप्स। ठीक है, कोई मैंने एक शेप सेलेक्ट करी, लेट्स से रेक्टेंगल, एंड आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर सेल। मैंने इस सेल में रेक्टेंगल को इंसर्ट कर दिया। तो पहले अब मैंने क्या किया, शेप इंसर्ट करी है। अब इस शेप के अंदर मैं अपनी पिक्चर को इंसर्ट करूंगी। ठीक है, दिस इज अनदर मेथड। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, आई होप यू गाइज आर डूइंग इट विद मी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे हम तो भूल जाएंगे। ठीक है, अब हमने जब ये सेल में ये इमेज इंसर्ट कर लिया है, उसके बाद अगेन विल गो टू इंसर्ट, विल गो टू इलस्ट्रेशंस एंड विल गो टू पिक्चर्स। ठीक है, और अनदर वे इज
हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसमें हम फॉर्मेट शेप्स में जाएंगे एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो वी कैन इंसर्ट अ पिक्चर। सी यहाँ से भी होगा, चलो अभी आ नहीं रहा है, अभी हम यहीं से करते हैं। विल गो टू इंसर्ट, विल गो टू इलस्ट्रेशंस, विल गो टू पिक्चर्स, दिस डिवाइस, लेट मी इंसर्ट द सेम पिक्चर। सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट किया। जस्ट अ मिनट। From a file, let me pick up the same picture and insert. Okay, यहीं से करेंगे, वहां से करेंगे तो फिर हमें उसे रीसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ स्टेप्स को। ये हटा दी हमने इमेज। वी हैव इंसर्टेड दिस टेक्स्ट बॉक्स, राइट? यहाँ तक क्लियर है? टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। वी वेंट टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस में देयर वर शेप्स। फ्रॉम दीज शेप्स आई पिक्ड अप अ रेक्टेंगल and I inserted that rectangle in this particular cell G7। जब ये इंसर्ट हो गया, उसके बाद हमने इस पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके वी वेंट टू फॉर्मेट शेप्स। ठीक है, इन फॉर्मेट शेप्स फिल करना है अब हमें। इस जो हमने शेप इंसर्ट करी है, इस शेप को हम पिक्चर से फिल करना चाहते हैं, तो मैंने ऑप्शन क्लिक किया पिक्चर और टेक्सचर्ड फिल। ठीक है, अभी ऑलरेडी पिक्चर मैंने सिलेक्टेड थी इसलिए यहाँ पे आ गई। लेट्स से इफ आई वांट टू चेंज दिस पिक्चर, सो आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। लेट्स से मैं अपनी कहीं किसी फाइल से ही पिक्चर पिक करना चाहती हूँ। सो फ्रॉम अ फाइल आई कैन पिक अप अ पिक्चर एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। तो यहाँ ये पिक्चर आ गई है। जब हम इस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो हमें वो वाला ऑप्शन नहीं क्लिक करना पड़ रहा, मूव and size with cells. This is automatically activated when you insert a picture after inserting a shape into the cell. ठीक है, whereas अगर आप बिना शेप इंसर्ट करेंगे इमेज को, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मूव एंड साइज विद सेल। अदरवाइज the size of your image might change. Sorry, the size of your image might not change. ठीक है, okay, fine. Is this clear? How can we insert an image into an Excel sheet? हम कोई इमेज या कोई पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में? क्या ये क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. So now next thing that we are going to see is how to insert hyperlinks into a Excel sheet. Now you tell me, what is a hyperlink? What is your understanding about hyperlink? Yes, any idea? What is the meaning of a hyperlink? Because the next thing that we are going to see is how can we insert a hyperlink. किसी ने सुना ही नहीं आज तक hyperlink? Ma'am, on clicking on the hyperlink, it leads to another web page. Yes, Alekhya, you're perfectly correct. It leads to another file. ठीक है, to be more generic. वेब पेज हम इंटरनेट के रेफरेंस में या जब हम वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं उसके रेफरेंस में कहते हैं, क्योंकि हाइपरलिंक वो हमें दूसरे पेज पे ले जाता है, लेकिन वो दूसरा पेज भी अल्टीमेटली एक ना एक फाइल ही होती है विच इज स्टोर्ड समवेयर। ठीक है, तो जब हम हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो हमें दूसरी फाइल ओपन
कर देता है. एंड जनरली व्हेन यू क्रिएट अ हाइपरलिंक, तो जैसे ही हम उसके नीचे अपना ये कर्सर लेकर जाते हैं तो वो एक हमें हैंड जैसा दिखने लगता है, राइट? सो लेट मी write something over here and convert it into a hyperlink. ठीक है, let me write presentation. मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देती हूँ. Fine. Let's say now I've written a word presentation over here. Fine. Now if I want to convert it into a hyperlink and if I want to link it with one of my presentations, कि ऐसा हो कि जब मैंने ये एक्सेल शीट खोली हुई है, जैसे ही मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूं तो मेरी वो प्रेजेंटेशन पे शिफ्ट हो जाए. ठीक है, कि मेरी स्क्रीन पे फिर वो प्रेजेंटेशन नजर आने लगे. Fine. So for that what you can do is right click on this and click on link. When I click on link, it is asking me to insert a hyperlink. It is asking me to give a link of the file which will get opened when I'll click on this hyperlink. ठीक है, तो हम कोई एक पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट करते हैं. लेट्स से मे बी let me pick up some other file. Desktop पे हम आए. Okay, let's say I want to open this snake and ladders. ठीक है, तो मैंने इससे लिंक कर दिया है इसे and I click on OK. As soon as I've converted into a hyperlink, you can see यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन को ब्लैक में लिखा हुआ था पहले और वो बोल्ड था और साइज बड़ा था, लेकिन अब ऑटोमेटिकली वो छोटा साइज हो गया, ब्लू में नजर आने लगा है. एंड एज सुन एज आई मूव माई कर्सर ओवर इट, वो हैंड नजर आता है और उसके नीचे लिखा हुआ आने लगा है कुछ, है ना, उसका रेफरेंस दे रहा है वो कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे देन यू विल बी मूव्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर फाइल whose name is snakes and ladders. ठीक है, let's try this. Can you all see this? ये hand नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Now I clicked on presentation and this presentation got opened up. Fine. So this is how we can create hyperlinks. और ऐसा नहीं है कि हम hyperlink सिर्फ text को कर सकते हैं. Even these images can be converted into hyperlinks. वो image पे भी हमें right click करना है, वही link पे जाना है. Link पे जाने के बाद let's say if I want to open some other file, day 1 short term course in advanced MS Excel, let's say this I want to open. I click on OK. Now my image is also being converted into a hyperlink. If I'll click on this image, that file should open. See, जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक किया वो वीडियो ओपन हो गया जिसका मैंने लिंक दिया था. ठीक है, इस पे क्लिक कर रही हूँ तो वो स्नेक एंड लैडर वाला प्रेजेंटेशन खुल रहा है. इस पे क्लिक कर रही हूँ तो वीडियो ओपन हो रहा है. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम सिर्फ टेक्स्ट को, इमेज को, नंबर्स को, किसी को भी, जो भी आपके उस पर्टिकुलर सेल में है वहां से आप उसे हाइपरलिंक बना सकते हो. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ हाइपरलिंक. फाइन. तो नेक्स्ट टाइम से जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आफ्टर यू हैव डन सम डेटा एनालिसिस और आप अपनी एक्सेल शीट खोल के प्रेजेंटेशन में वो दिखा रहे हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट के वाइवा में, तो वहीं से आप हाइपरलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हो और जो भी आपका रेफरेंस फाइल्स हैं वो यहीं से आप क्लिक करोगे एंड दे विल गेट ओपनड अप. फाइन. Can we move on to the next topic? Yes, ma'am.
Fine. So the next thing that we'll see is how can we insert headers and footers in our Excel sheets. Word में तो आप लोगों ने सबने किया ही होगा. More or less in similar manner, we'll be inserting headers and footers in our Excel sheets also. Have you done it for Word? MS Word में किया है headers and footers insert? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. जब आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई होंगी तो यू मस्ट हैव इंसर्टेड पेज नंबर्स एज अ पार्ट ऑफ फुटर और मे बी हेडर. और हेडर में आपने मे बी अपना नाम डाला होगा या अपने प्रोजेक्ट का नाम डाला होगा, राइट. सो इन हेडर्स एंड फुटर्स हम नॉर्मली ऐसा डेटा डालते हैं विच नीड्स टू बी रिपीटेड ऑन ईच एंड एवरी पेज. डू यू एग्री विद मी? Yes, ma'am. है ना. और वो रिपीटेशन ऑफ डेटा वो हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो. डिफरेंट मे बी डिफरेंट एज इन पेज नंबर्स, क्योंकि पेज नंबर्स विल ऑटोमेटिकली चेंज. 1 2 3 4 वो आना चाहिए. लेकिन इफ आई एम राइटिंग लेट्स से माय टाइटल ऑफ माय प्रोजेक्ट, तो वो दैट हैज टू रिमेन द सेम. ठीक है. तो वो डिपेंडिंग ऑन द डेटा इट कुड बी सेम और इट कुड बी डिफरेंट, बट इट विल बी रिपीटेड on each and every page of that particular document. हम इसी शीट में विल जस्ट सी कि हम कैसे हेडर्स एंड फुटर्स इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. द इजीएस्ट वे इज टू गो थ्रू दिस पेज लेआउट. हमारे बॉटम में यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं. 3 तरह के व्यूज हो सकते हैं हमारी एक्सेल की शीट जो ओपन है उसकी. नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू. पेज ब्रेक आई थिंक कल सर ने आप लोगों को करके भी दिखाया था कि पेज ब्रेक से कैसे हम रीसाइज कर सकते हैं while taking printouts of our documents, and it becomes easy. और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा आपका प्रिंट. एग्जैक्टली जितना आपको चाहिए उतना आप एक एक पेज में करके निकाल सकते हो. तो हम पेज ब्रेक तो उस काम के लिए ज़्यादा यूज करते हैं. अभी हेडर्स एंड फुटर्स के लिए विल क्लिक ऑन पेज लेआउट. ठीक है. as soon as you'll click on page layout, जो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे जिस फॉर्मेट में आपका एक्सेल खुलेगा, it will allow you to add headers. Let me scroll down, as well as footers into your page. ठीक है. let's say header में हम कुछ डालते हैं. header में सेंटर में लिख सकती हूँ मैं, लेफ्ट में लिख सकती हूँ, राइट में लिख सकती हूँ. ठीक है. I want to write it in right. Let me write Excel short term course. Okay, BB. Fine. Now when you write this you can see कि if इस वाले पेज में भी आ रहा है जिसमें ये इमेज है और ये दूसरे पेज में भी आना चाहिए. उसके लिए चलो हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखते हैं. प्रिंट, yes, it is on my first page. When I scroll down it is coming on my second page also. तो मेरे इस एक्सेल शीट में एक हेडर इंसर्ट हो गया है. ठीक है. on similar way you can insert footers also. let's say footer पे हम जाते हैं. footer में let's say we want to put page number. तो यहाँ जैसे मैंने फुटर पे क्लिक किया यहाँ पे ये टैब आ गया हेडर एंड फुटर का. इस पे मैं डबल क्लिक करती हूँ एंड लेट मी इंसर्ट पेज नंबर. क्यों नहीं रहा है भाई? अच्छा ये आ गया था, मैंने इतना ज्यादा इंसर्ट कर दिया. ओके. ठीक है. लेट्स से ये पेज नंबर भी आ गया. अब हम फिर से एक बार प्रीव्यू में जाके देखते हैं. यस, नीचे पेज नंबर आ रहा है. इस शीट पे 1 आ रहा है. इफ आई स्क्रॉल इट डाउन दूसरी शीट पे 2 आ रहा है. इट इज वेरी स्मॉल, मे बी इट्स नॉट रीडेबल फॉर यू गाइज, राइट, बट इट इज कमिंग. So this is how we can insert headers and footers into our Excel sheets. अब मैं नॉर्मल व्यू पे वापस चली जाती हूँ. ठीक है. अब 2 अलग अलग पेज नहीं दिख रहे हैं. आई कैन सी जस्ट 1 पेज. लेकिन यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आ रही है F के बाद, which shows that this is the
second page, जो G onwards जो भी मेरा data आएगा, that will be shown in my second page. So we've seen how can we insert images, we have seen how can we insert hyperlinks, we have seen how can we insert headers and footers in our Excel sheet. ठीक है, अब आगे चले. Yes, ma'am. Okay. Now, next topic is, I mean, maybe you guys have done it earlier also, but more you do it, more fluency you'll get, है ना. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, स्पेशली व्हाइल यू विल बी डूइंग योर फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना. इस सेमेस्टर में आप लोगों को अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है. तो जब वो प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत सा डेटा आप कलेक्ट करोगे, और जो डेटा कलेक्ट करोगे उस डेटा को एनालाइज भी करोगे. एनालाइज करते हुए उस डेटा से वेरियस चार्ट्स यू विल बी जनरेटिंग. तो जो चार्ट्स आप लोग जनरेट करोगे, जो चार्ट्स आप लोग बनाओगे, उन्हें आप कैसे बढ़िया से बढ़िया बना सकते हो, सो दैट ऑल द डिटेल्स आर बीइंग गिवन इन द चार्ट इटसेल्फ. बिकॉज व्हाइल गिविंग योर प्रेजेंटेशन यू माइट नॉट बी शोइंग द एक्चुअल डेटा, यू जस्ट माइट बी शोइंग योर चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और उन चार्ट्स और ग्राफ्स की हेल्प से ही आप एक्सप्लेन करोगे. तो वो इतने अच्छे होने चाहिए सो दैट द एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड योर एनालिसिस क्वाइट वेल, है ना. तो वो हम देखते हैं कि हाउ कैन वी इंसर्ट चार्ट्स इनटू एक्सेल, और फ्रॉम एक्सेल हाउ कैन वी जनरेट चार्ट्स. ठीक है. सो आई हैव सम डेटा which I have created. It is just an abstract data where I have years from 2001 to 2010, and I have this production of various kind of cereals, you can say wheat, rice, ragi and bajra. 2001 में वीट का प्रोडक्शन वाज लाइक 356. अब ये क्विंटल्स में हो सकता है या जिस भी उसमें होगा. हमने सिर्फ एक आर्बिट्ररी ऐसे ही फिगर्स ले लिए हैं जिससे हम चार्ट जनरेट करना की कोशिश करेंगे. अच्छा, कौन सा चार्ट जनरेट करना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फॉर दैट यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग. कैसे चार्ट हम बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. Let's say if you want to show a comparative figure of production of wheat from 2001 to 2010, सिर्फ wheat का आप बनाना चाह रहे हो. ठीक है. तो हम उसे कैसे बनाएंगे. सिर्फ wheat का प्रोडक्शन हम दिखाना चाह रहे हैं कि 2001 से 2010 तक कैसे वेरी किया. ठीक. Your boss has asked you to show it in a graphical format. ऐसे तो है कि ठीक है 2001 में 356 था, 2002 में कम हो गया 346 रह गया, 2003 में बढ़ के 378 हो गया. Now let's have a pictorial representation of this data. चार्ट बनाने के लिए मेरे को जिस डेटा का चार्ट बनाना है, let's say मैंने उस डेटा को सिलेक्ट किया. I'll go to insert tab again. ठीक है. insert tab में there are various options, various types of charts which are available. ये charts वाला सब टैब है. इसमें recommended charts है, इसमें आपका bar chart है, इसमें line chart है, इसमें pie chart है. As per my understanding, to show this data, let's generate a bar chart. ठीक है. तो हमने bar chart पे क्लिक किया. Let's have a 2D bar chart. 2D पे मैंने क्लिक किया. ये मेरा चार्ट बन के आ गया. राइट. बट नाउ आफ्टर लुकिंग एट दिस चार्ट, अगर ये फिगर साथ में ये डेटा नहीं दिया हुआ हो तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग. ठीक है. सो आई नीड टू पुट सम मोर डेटा इनटू द चार्ट सो दैट दिस चार्ट बिकम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना. तो वो हम कैसे डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, इसकी जगह ईयर्स आने चाहिए, बिकॉज दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग 2001 ईयर. 2001 में प्रोडक्शन वाज 356. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली ये बार जो मेरा बन के आया ये 356 के आसपास होगा. आई कैन मेक आउट, है ना. ऐसे ही 2004 में ये 435 चला गया, तो 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये 435 के आसपास आ गया है. ठीक है. सो
यहाँ 1 2 3 4 5 6 की जगह अगर हम 2001 से लेके 2010 लिखें तो हमारा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। वो हम कैसे करेंगे? चार्ट जो आपका जनरेट हो गया है उस पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके यू कैन गो टू सिलेक्ट डेटा, ठीक है। और अनदर मेथड इज यहाँ से भी, जैसे आपका ये चार्ट आया है यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में से ही कहीं से भी जा सकते हो आप। मैं यहां से जाती हूँ, सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट डेटा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस इज representing horizontal axis, this is representing the vertical axis or the legend entries. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम चेंज करना चाह रहे थे, सो विल क्लिक ऑन एडिट और अब हम एक्सिस लेबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। प्रीव्यू आने लग गया, देखो ऑटोमेटिकली अभी नीचे 2001 से 2010 लिखा हुआ आ गया, 1 2 3 4 हट गया है, राइट। कैन यू ऑल सी दिस चार्ट? इज द चार्ट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आई क्लिक्ड ऑन ओके। तो ठीक है, नीचे ये मेरे फिगर्स चेंज हो गए। अच्छा, इधर जो मेरी लेजेंड एंट्री थी उसका नाम सीरीज 1 है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हीट प्रोडक्शन, राइट। सो लेट मी चेंज दिस ऑल्सो। इसको सेलेक्ट किया, एडिट किया, इट इज आस्किंग मी टू गिव इट अ सीरीज नेम। मैं इसको नाम दे देती हूँ व्हीट एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं, ओके लेट्स सी, फाइन। अब हमारा ये चार्ट चेंज हो गया, वीट ऊपर लिखा हुआ आ गया, वीट प्रोडक्शन लिख देते तो और बेटर होता। नीचे हमारे ईयर्स आ गए हैं, इधर हमारा प्रोडक्शन कितना कितना है वो शो कर रहा है। अब हम इसमें फर्दर और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट। कैसे? लेट्स सी। यहाँ पे है ऐड चार्ट एलिमेंट्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड टॉप in the chart design I have add chart elements. Let me click on this. यहाँ पे नीचे मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आए हैं, ठीक है। एक्सिस को मैं टाइटल्स दे सकती हूँ, दैट मीन्स प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को मैं टाइटल्स दे सकती हूँ कि उनमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। लेट्स अज्यूम, लेट्स से वी वांट टू गिव अ टाइटल टू आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लिक किया मैंने, यहाँ में आई एक्सेस टाइटल दिया मैंने उसे ईयर्स। सिमिलरली इफ आई वांट टू गिव अ टाइटल टू माय वर्टिकल एक्सिस, वो भी क्लिक किया मैंने और ये यहां मैं देती हूं प्रोडक्शन, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम इसमें बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा लेबल्स। Data labels will give you the exact figures on these bars that you have drawn. Let's say हम इनके ऊपर लिखना चाहते हैं exact number कि ये हर बार कितना represent कर रहा है। So I've clicked on this, ठीक है। उसके अलावा हम जो टेबल, जिस टेबल को यूज लिया गया है इस पर्टिकुलर चार्ट को जनरेट करने में, even we can put that table in this particular चार्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी जो इनिशियली जो चार्ट जनरेट हुआ था और अभी जो चार्ट दिख रहा है, कैन यू सी द डिफरेंस? अब इस चार्ट को अगर मैं अपनी पीपीटी में पेस्ट कर लूं तो ऑब्वियसली इसकी प्रेजेंटेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें नजर आ रहा है कि ये प्रोडक्शन है, इधर ईयर्स है, ये इसका फिगर 356 है, इसका 346 है। दिस इज शोइंग व्हीट प्रोडक्शन। टाइटल को और चेंज करना चाहो और चेंज कर सकते हो, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ आवर चार्ट्स। लेट्स से अब हम फर्दर इसमें राइस का प्रोडक्शन भी दिखाना चाहते हैं, हम कंबाइंड चार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगेन राइट क्लिक करती हूँ मैं, आई गो टू सिलेक्ट डेटा
यहाँ पे अभी सिर्फ वीट था, इसमें मैं और ऐड करूंगी. ठीक है, क्या ऐड करूंगी? राइस. सीरीज नेम मैंने दिया and my series values. Okay. Now can you see? In blue it is showing wheat and in orange it is showing rice. है ना? अब अगर आप कंपैरेटिव दिखाना चाह रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ wheat and rice production from 2001 to 2010, so this figure shows, or this chart shows that comparison. फर्दर अगर हम चाहे रागी और बाजरा तो वो भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. Now if I want to change the chart itself, अगर मैं चार्ट का टाइप ही चेंज करना चाहती हूँ, मेरे को बार नहीं चाहिए, मैं लाइन चार्ट चाहती हूँ, I can go to this change chart type, click on line and click on OK. See, वो बार चार्ट से लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया है, and you can see how the production is changing from 2001 to 2010 for wheat as well as for rice. Is this clear? Yes, ma'am. Now you all can generate charts. बना सकते हैं सब? Yes or no? Yes, ma'am. Can I give you a small exercise? एक छोटी सी एक्सरसाइज हम सब करेंगे. I'll give you a data. ठीक है? And based on that data, you have to generate a chart. ठीक है? Because otherwise तो सिर्फ one way communication हो जाएगा. This is a short term course, so you should also practice some of the things. है ना? So I'll give you a small exercise, एकदम छोटा सा बनाना है आपको एक चार्ट. Fine, just give me. अच्छा आ ही रहा होगा. हाँ, मेरी तो स्क्रीन पूरी शेयर हो रखी है ना. So you have to use this data to create a pie chart. ठीक है? Next 5 minutes, फटाफट से. In case you get stuck up somewhere, you can ask me. I'm here to help you out. Yes, बेटा, प्रकृति, नकुल, अलेख्या, कर पा रहे हैं हम लोग? Are we able to create a chart? Or should I help you out? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका चार्ट बना के दिखा सकती हूँ अभी आप लोगों को एक बार और. Ma'am, done.
Done. Ma'am, done. Good. Chalo. So that means charts we can Ma'am, make. done. Good, Pragati. So now we have learned how to insert charts also, है ना? और charts को और बढ़िया और अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, वो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है ना? बाकी तो अब आप लोग और प्रैक्टिस करोगे एंड you'll get more expertise in this. ठीक है? So next topic now that we'll be discussing is various functions. First we'll start with some text based functions. ठीक है? हम text based functions से start करेंगे. Text based functions to work on the text data. Functions या formulas दोनों ही हम यूज करते हैं in Excel. कुछ predefined functions हैं, predefined formulas हैं which are inbuilt in your MS Excel, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बस हमें उन्हें यूज करने का तरीका पता होना चाहिए. कुछ फंक्शंस या फॉर्मूलाज हम अपने आप भी डिफाइन कर सकते हैं इन MS Excel. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई वांट टू जस्ट ऐड टू नंबर्स रिटन इन टू सेल्स, तो आई कैन राइट डाउन इक्वल टू sign and then I can specify their cell locations की A1 plus A2 करना है. ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कि I can use the sum function which is a predefined function available with MS Excel. तो मैं equal to करके sum लिखूंगी and then in the bracket I'll write A1 colon A2. तो काम दोनों से ही एक ही हो रहा है, लेकिन जब मैंने sum function यूज नहीं किया, in that case I am defining that formula or that function. Whereas जब मैं उस sum function को यूज कर रही हूं तो मैं एक predefined Excel function को यूज कर रही हूं. तो अभी हम text based functions देखेंगे. Text based functions which are used to perform various variations or to perform various functions on text data which is there in your Excel. ठीक है? Let me start the sharing with you. ठीक है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? Yes, ma'am. Let me type something. आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करती हूँ सो दैट इट इज विजिबल. इस सेल को भी बड़ा कर लेते हैं. ठीक है, चलो. अब हम टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस लगा के देखते हैं. अभी क्या है यहाँ पे बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रनिंग इन राइटिंग में लिखा हुआ है ना. फर्स्ट लेटर्स आर कैपिटल और बाकी के सारे रनिंग में हैं स्मॉल अल्फाबेट्स हैं. इफ समवन आस्क्स मी कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, इसको पूरा कैपिटल्स में लिखो, ऑल द अल्फाबेट्स शुड बी इन कैपिटल. ठीक है, तो क्या होगा? या तो मैं पूरा वापस से टाइप करूं. अभी तो यहाँ पे तो सिर्फ एक नाम टाइप करना है तो इट्स ओके, आई कैन टाइप इट, राइट. लेकिन अभी अगर यहाँ पे आईपी के सारे कॉलेजेस की लिस्ट होती तो यहाँ पे एटलीस्ट 100 लिस्ट आ जाती, मेरे पास 100 नाम होते, तो फिर मुझे टाइप करने में मुझे लगता है यार मैं इतने सारे वापस से टाइप करूं, व्हाट इज दिस. ठीक है, तो ये करने के लिए हमारे यहाँ पास एक्सेल में देयर इज अ प्रीडिफाइंड फॉर्मूला. ठीक है, अ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन इज देयर, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूला इज देयर. वो क्या है? वो है हमारा अपर. अच्छा, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन जब हम प्री डिफाइंड टाइप करने लगते हैं
तो यू कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन, जैसे ही मैंने यूपी लिखा है, यहाँ पे नीचे अपर लिखा हुआ आ गया है, एंड इट इज गिविंग मी सम एक्सप्लेनेशन. इट कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर्स, राइट, मैम. है ना. तो वो मुझे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये क्या करेगा. ठीक है. और जैसे ही आप उस पर आप तो डबल क्लिक कर सकते हो या पूरा लिखोगे और ब्रैकेट ओपन करोगे, उसके बाद वो आपको बताएगा. इसके बाद आपको टेक्स्ट देना है. अब या तो मैं टेक्स्ट टाइप करूं या फिर मैं सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ जिस सेल में वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसे मैं अपर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ. एंड ब्रैकेट क्लोज एंड आई प्रेस एंटर. कैन यू सी, ये पूरा बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑटोमेटिकली कैपिटल्स में आ गया है ना. लेट्स से नाउ इफ समवन आस्क्स कि नहीं ये कैपिटल में नहीं चाहिए, ये सारा स्मॉल में चाहिए, रनिंग में चाहिए, BCIPS सब कुछ स्मॉल में होना चाहिए, कुछ भी कैपिटल में नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला हमारे पास है? उसके लिए है हमारे पास यस कौन सा? लोअर. यस लोअर. लोअर लिखा, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया मैंने अपना सेल, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर. तो ये सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. अब लेट्स से ऐसे ही नाम लिख दिए थे हमने, सारे लोअर केस में लिख दिए. ठीक है. ऐसे लेट्स से बहुत बड़ी लिस्ट थी. अब समवन आस्क यू कि नहीं ये तो नाम तो ऐसे नहीं लिखे होने चाहिए. द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटल. कि नाम और सरनेम जो भी है फर्स्ट तो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे रनिंग में होने चाहिए. ठीक है. तो वो करने के लिए भी हमारे पास फंक्शन है. व्हाट इज दैट? एनी गेसेस? प्रॉपर यस. अब हमें प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए. ठीक है. टेक्स्ट स्ट्रिंग सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी एंड एंटर. सेम फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर लेती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा. ठीक है. ऑब्वियसली जब हमें एक आध जगह चेंज करना होता है तो हमें इन फंक्शंस का उतना यूसेज नहीं लगता है. लेकिन इमेजिन अ डेटाबेस वेयर इन यू हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच डेटा और वहां आपने ऑटोमेटिकली चेंज करना है, देन इट बिकम्स रियली यूजफुल. ठीक है. दीज टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस. ओके. अब हम एक और देखते हैं. अब लेट्स से आपको बोला गया कि आपको सिर्फ फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स लेने हैं सब. ठीक है. दैट्स ऑल. फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स of all the names or whatever is written in a column. बाकी के अल्फाबेट्स आपको मतलब नहीं है, आपको ट्रंक करके सिर्फ उतना ही निकालना है. ठीक है. तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है, इज इक्वल टू. अब फर्स्ट चाहिए तो ऑब्वियसली वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट मोस्ट 4 लेटर्स चाहिए. तो फंक्शन है लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, I'll select the text, comma, number of characters. कितने चाहिए? हमने कहा था हमें 4 चाहिए. ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. तो फर्स्ट 4 आ गए. ऐसे ही अगर हमें लास्ट 4 चाहिए होते तो एनी गेसेस क्या होगा फंक्शन? लेफ्ट से हमें फर्स्ट 4 मिल रहे हैं तो लास्ट 4 किससे मिलेंगे? Right. राइट. टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, कॉमा 4. जितना भी आप नंबर दोगे उतने वो पिक कर लेगा. यहाँ हमने 4 दिया इसलिए उसने 4 पिक करे हैं. ठीक है. ऐसे ही हम बीच में से भी कहीं से भी जहां से हम पिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास फंक्शन है मिड.
ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द टेक्स्ट, मिड में कहां से आप पिक करना चाहते हो, दैट नंबर यू हैव टू गिव। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं थर्ड से पिक करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं 4 अल्फाबेट्स पिक करना चाहती हूँ। ठीक है, थर्ड से मैंने पिक किया और मैंने 4 कैरेक्टर्स उसके बाद पिक करे। सो फ्रॉम माय नेम उसने थर्ड से ओ से पिक करा, ओ जे ए, और फिर चौथा ब्लैंक था इसलिए उसने कुछ नहीं लिया, 3 ही लिए हैं। फ्रॉम नेहा मैम्स नेम उसने एच से पिक करना शुरू किया बिकॉज द थर्ड लेटर इज एच। एच पिक किया, ए पिक किया, देन स्पेस पिक किया एंड एस पिक किया, क्योंकि उसे 4 ही पिक करने थे। फ्रॉम प्रशांत सर्स नेम उसने ए से पिक किया, ए, एस, एच एंड ए। ठीक है, so from middle also we can pick up certain alphabets. These functions are useful when you have huge strings and from those huge strings you are asked to pick up selective data, कि हर string में से कुछ कुछ selective data कहीं से आपको बोल दिया गया है और वही आपको pick करना है, then this kind of text based function become very useful. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? Shall we move forward? Okay, so let's move forward. अब जो हम फंक्शन करने वाले हैं दैट इज लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, इनको थोड़ा हम समझ के करेंगे क्योंकि लॉजिकल फंक्शंस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नेस्टेड इफ पार्ट। हम उसमें इफ करेंगे, नेस्टेड इफ करेंगे, एंड करेंगे और करेंगे। लॉजिक जहां रिक्वायर्ड है वो फंक्शंस अब हम करेंगे। ये तो जो अभी हमने करे थे दीज वर टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस जो हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे थे। अब हम लॉजिकल फंक्शंस अप्लाई करेंगे, तो जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनके जो रिजल्ट्स हम कह सकते हैं दैट इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स और यस एंड नो, यस और नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स यू is 5 greater than 2, what will be your answer? Is 5 greater than 2? Yes. Yes. ठीक है, is your age less than 25? Yes. Fine or no? ठीक है, तो हम लॉजिक लगा रहे हैं, हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, देन इफ समवन आस्क यू कि let's say what will you have, whether you will like to have oranges or you would like to have apples, तो और कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन आ रहा है, या will you like to have oranges and apples both? ठीक है, तो इस तरह के जो हमारा इंटरप्रिटेशन टाइप बेस्ड थिंग्स होंगी वो हम कहते हैं कि लॉजिकल फंक्शंस उसमें हम यूज कर सकते हैं। कि एक्सेल में हमारे पास डेटा है, लेट्स से आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, अब आपको उस डेटा में से सिलेक्टिव डेटा को पिक करना है, या आपने एक और कॉलम जनरेट करना है जहां आपने ये स्पेसिफाई करना है कि आप किन किन को सिलेक्ट करोगे। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि the candidate has to be a female and the candidate has to be from outside Delhi। ठीक है, तो फिर आपको उसका ओरिजिन और उसका जेंडर, ये दोनों चीजों को कंपेयर करोगे, है ना, कि जेंडर फीमेल होना चाहिए और ओरिजिन उसका आउटसाइड दिल्ली होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा। तो इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल करोगे। ठीक है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोगों का रिजल्ट आ गया है एंड वी वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, तो वहां हम कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं कि द student should have got more than 90% marks। ठीक है,
plus his or her attendance should also be more than 90%, तो हम उसको मेडल देंगे या उसको हम मेरिटोरियस कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमने लगाई हैं। तो इस तरह की जहां भी कंडीशनल चीजें आ जाएंगी वो हमारे लॉजिकल फंक्शंस को यूज करके वो हम अप्लाई कर सकते हैं इन एमएस एक्सेल। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद आवर इफ फंक्शन। हम अपने इफ फंक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? Just give me 1 minute. Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, पहले हम एक डेटा सेट बनाते हैं छोटा सा, एंड विल वर्क ऑन दैट डेटा सेट टू अप्लाई लॉजिकल फंक्शंस ऑन इट। ठीक है, all of you can generate this data set along with me. All of you can write this. I hope you guys are sitting with your laptops or desktops. Yes, ma'am. Good. स्क्रीन नजर आ रहा है या थोड़ा और बड़ा करूं इसका साइज? Ma'am, it's fine. ओके, ठीक है, हमने ये 8 स्टूडेंट्स का आर्बिट्री डेटा हम ये बना रहे हैं। विल बी राइटिंग देयर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। ठीक है,
ठीक है, सबका बन गया ये डेटा? Yes, ma'am. Okay, let's find out the totals. चलो हम इसमें सम फंक्शन यूज कर लेते हैं. दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. We'll write sum, bracket open, select किया, bracket close, and press enter. जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली सब में कॉपी कर रहा है ना. यहाँ पे हमारा था सम C5 to E5, यहाँ पे मेरा सम है C7 to E7, बीच वाले में है C6 to E6, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज कर रहा है. Now in next session, Neha ma'am will be telling you about this also. This is relative addressing, relative and absolute addressing का concept भी एक दिन आप लोगों को बताएंगे. ठीक है. So we've calculated the total. ठीक है. Now let's say based on this total we can calculate the percentage. मैं एक simple सा formula पहले लगा लेती हूँ percentage का, कि परसेंटेज नॉर्मली क्या होता है, जितने मार्क्स हमारे आए हैं डिवाइडेड बाय जितने, लेट्स से ये 100 में से थे, तो डिवाइडेड बाय 300 and into 100. ठीक है, इसी को मैं ड्रैग कर लेती हूँ, ये नीचे सबके मार्क्स आ गए. लेट्स से वी डू नॉट वांट दीज डेसिमल पॉइंट्स, तो इन्हें हम हटा देते हैं. ठीक है. सो दिस इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स. ये सी ना इन दिस, यहाँ पे जो हमने यूज किया सम, दिस इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच इज अवेलेबल इन योर MS Excel. Whereas यहाँ जो परसेंटेज निकालने के लिए हमने अप्लाई किया वो हमारा डिफाइंड है. यहाँ पे हमने कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला या फंक्शन नहीं यूज किया है. ठीक है. तो एक्सेल में हम दोनों ही चीजें कर पा रहे हैं, प्री डिफाइंड को भी यूज कर पा रहे हैं और हम अपने भी फॉर्मूलाज और फंक्शंस बना के उन्हें भी यूज कर सकते हैं. बोथ द थिंग्स आर एप्लीकेबल ओवर हियर, है ना. परसेंटेज निकालने के लिए हमने कोई परसेंटेज का फॉर्मूला यूज नहीं किया, प्री एग्जिस्टिंग यूज नहीं किया, हमने अपना बनाया और उसे यूज किया. ठीक है. अब लेट्स से वी आर आस्क्ड टू give the results in the form whether the student has passed or the student has failed. ठीक है. आपको सिर्फ इतना सा रिजल्ट बताना है कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है. एंड लेट्स से द क्राइटेरिया फॉर पासिंग इज, जो मार्क्स किसी ना किसी के कम करने पड़ेंगे, रुको थोड़े से कम करती हूँ. Criteria for passing is, let's say, one should get more than 50% marks. Less than 50 is fail. ठीक है. 50 और less than 50 is failed. More than 50 is pass. तो 51 से लेके 100 तक जिसकी भी परसेंटेज है वो पास हो गया है. 50 या 50 से कम जिसकी भी परसेंट है वो फेल हो गया है. ठीक है. यहाँ तो 8 बच्चे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला पास हो गया है, दूसरा भी पास हो गया, तीसरा भी पास, चौथा फेल हो गया. लेकिन अगर ये 8 की जगह 8000 होते तो फिर हमें ऐसे एक एक का लिखने में जोर आता, राइट. एंड इट वुड हैव बीन अ कम्बरसम प्रोसेस. 8000 का ऐसे देख देख के लिखना एटलीस्ट 1-2 घंटा तो लग जाएगा और एरर आने के चांसेस भी है. ठीक है. तो उसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन होता है विच सेज इफ. वो हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन पास है और कौन फेल है. ठीक है. जो आपका लॉजिकल फंक्शन होगा वो रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स के केस में ही देता है, लेकिन हम उसे और प्री यू कैन से मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, और रिजल्ट को ट्रू या फॉल्स डिस्प्ले करने की जगह हम कुछ और भी डिस्प्ले करवा सकते हैं. ठीक है. हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जिसके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं उसके नाम के आगे पास डिस्प्ले होना चाहिए, जिसके मार्क्स 50 या 50 से कम है उसके नाम के आगे फेल डिस्प्ले होना
चाहिए. So let's start. We'll use this logical function if. मैंने लिखा equal to because all the functions or the formulas, whether they're predefined or you are defining it in Excel, it has to start with equal to. Excel जैसे ही equal to sign देखता है उसे समझ में आ जाता है कि कोई फॉर्मूला आने वाला है. ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, एंटायर स्क्रीन नहीं. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बिकॉज मैं एंटायर स्क्रीन शेयर करूंगी तभी मैं उस फॉर्मूला को लगाऊंगी तो आपको नजर आएगा. आर यू गाइस देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ? Yes, ma'am. Ma'am, screen is not हाँ हाँ, visible. मैं अभी कर रही हूँ स्क्रीन शेयर. इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. ओके, सो आई हैव रिटन इक्वल टू इफ. जैसे ही मैंने इफ लिखा वो देखो नीचे आ गया. चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स. ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, अगर नहीं फुलफिल हुई तो वो दूसरी वैल्यू रिटर्न करता है. तो हमने इफ लिखा, हमने ब्रैकेट ओपन किया. एज विद एनी अदर प्रीडिफाइंड फॉर्मूला, फॉर्मूले का नाम लिखो एंड अप्लाई अ ब्रैकेट. जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया वो मुझे कह रहा है कि अब मुझे लॉजिकल टेस्ट लिखना है अपना. मेरा टेस्ट क्या है? मेरा टेस्ट ये है या मेरी कंडीशन ये है कि दिस नंबर विच इज देयर इन G5 शुड बी ग्रेटर देन 50. ठीक है, कॉमा value if true. It is saying value if true means if this condition is true, if G5 is greater than 50, तो हम क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं? तो हम लिखना चाह रहे हैं पास, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स. if G5 is not greater than 50, वो 50 है या 50 से कम है, तो हम क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं? फेल एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, इसे ध्यान से देखो क्योंकि सिंगल इफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अभी जब मैं नेस्टेड इफ पे जाऊंगी देन यू माइट फाइंड इट कॉम्प्लिकेटेड. सो प्लीज लुक एट इट केयरफुली. इफ के बाद सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं, अपनी जो टेस्ट हमें करना है वो लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने लगाया कॉमा. कॉमा के बाद जो हमने टेस्ट किया था, अगर वो टेस्ट ठीक निकल रहा है, उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो कंप्यूटर को क्या करना है या एक्सेल को क्या करना है? इस केस में पास प्रिंट करना है. अगर कॉमा के बाद फिर नेक्स्ट पे जाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स. अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो क्या करना है? उसे फेल प्रिंट करना है. ठीक है, तो G5 में क्या है? 58 है. 58 इज ग्रेटर देन 50, तो इसे पास प्रिंट करना चाहिए. लेट अस प्रेस एंटर एंड सी व्हाट रिजल्ट इट इज गिविंग. यस, पास कर दिया है इसने. मैं इसी फॉर्मूला को नीचे सब जगह ड्रैग कर लेती हूं. 2 जगह इसने फेल दिया है. जया हैज फेल्ड एंड सीमा हैज फेल्ड, क्योंकि उनकी परसेंट 50 से कम है, 39 एंड 48. ठीक है, इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, अब हम आगे चलते हैं. अब हम इसमें नेस्टेड इफ लगाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, नेस्टेड इफ मींस एक इफ के अंदर दूसरा इफ. ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन या एक फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज परमिसिबल इन MS एक्सेल. ठीक है, कि आप
सम के अंदर एवरेज या एवरेज के अंदर सम, या आप जब अपना कुछ लेट्स से अभी यहाँ पे जो हमारे ये परसेंट आया था इसमें डॉट डेसिमल प्लेसेस के बाद भी कुछ नंबर्स आ रहे थे कि 95.22 आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो मैं उसे राउंड करना चाहूँ तो मैं परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, साथ में उसे राउंडिंग अप भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो वी कैन यूज मल्टीपल फंक्शंस इन वन अनदर, दिस इज परमिसिबल, ठीक है। अब हम जो यूज करने वाले हैं मल्टीपल फंक्शन, वो हम एक ही फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन उस फंक्शन को हम उसी के अंदर 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 और यूज करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने पास फेल निकाला था, ठीक है। अभी हमें कहा गया है कि अब आपको क्या करना है, आपको 3 कैटेगरीज दे दी है। एक आपको दिया गया है डिस्टिंक्शन, दूसरा पास और तीसरा फेल। इफ समवन हैज गॉट मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो आपको लिखना है डिस्टिंक्शन, ठीक है। अगर किसी के मार्क्स 80 से लेकर 50 तक हैं, लेट्स से 51 करते हैं, 51 तक हैं, तो आपने लिखना है पास। और अगर किसी के मार्क्स लेस देन 50 हैं तो आपने लिखना है फेल, ठीक है। अब 3 कंडीशंस आ गई हैं मेरे पास, ठीक है। अभी जो हमने ये रिजल्ट बनाया था, जो H कॉलम में रिजल्ट है, उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन थी, या तो बच्चा पास है या बच्चा फेल है। अब हम I में जो शो करेंगे उसमें हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, या तो बच्चे की डिस्टिंक्शन है इफ ही और शी हैज गॉट मोर देन 80% मार्क्स, या फिर वो सिंपली पास हुआ है इफ ही हैज गॉट 51 to 80% मार्क्स, या फिर वो फेल हुआ है इफ ही और शी हैज गॉट लेस देन 50 मार्क्स, ठीक है। सवाल समझ में आ गया है? इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. अब हम इन 3 क्राइटेरियाज के लिए, हाँ बेटा बोलो। मैम क्लियर है। क्लियर है, ओके। चलो अब हम इसके लिए फंक्शन अप्लाई करते हैं। सो विल स्टार्ट विद इक्वल टू, आई पुट इफ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करती हूँ। अगर जो ये मार्क्स हैं जो G5 में लिखे हुए हैं, इफ दीज मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, तो क्या करना है हमें? अगर 80 से ज्यादा है तो Distinction. डिस्टिंक्शन लिखा आना चाहिए, गुड। तो हमने डिस्टिंक्शन लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू इफ ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ G5 इज ग्रेटर देन 80 देन डिस्टिंक्शन विल बी डिस्प्लेड। अगर ये नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स, इफ द वैल्यू इन G5 इज नॉट ग्रेटर देन 80, तो क्या करना है हमें? यस, एनीवन हेल्प मी आउट। तो हमें क्या लिखना है? पास लिखना है कि फेल लिखना है? If this value in G5 is not greater than 80, let's say assuming ये 58 है, जो इसमें एक्चुअल में है 58, तो हमें क्या लिखना है? पास। हमें पास लिखना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 58 है। लेकिन अज्यूमिंग के मुझे नहीं पता होता, या मेरे को तो जेनरिक फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि जब जया के उसमें जाएगा रो में जहां 39 है, तो वहां पे फेल लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पास या फेल तो नहीं लिख सकती। डू यू अग्री विद मी? अगर पहले वाले की तरह मैं यहाँ पे सिर्फ पास लिख दूं कि अगर लेस देन 80 है और पास आ जाए, तो फिर तो जया भी पास हो जाएगी और सीमा भी पास हो जाएगी, है ना? इफ दिस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 80, तो ये जाएगा इसमें वैल्यू इफ फॉल्स में। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पास लिख दूं, एक बार लिख के देखते हैं, और ये एंटर कर दिया, इसको हमने नीचे ड्रैग किया, तो अब क्या हुआ? ये तो एक हेमा की डिस्टिंक्शन है, बाकी सब लोग तो पास हो गए। whereas we know that Jaya and Seema have not passed, they have failed. तो हमको कुछ और भी करना होगा। This
thing will not work. है ना? अगर मार्क्स लेस देन 80 है तो फिर से हमें चेक करना होगा कि मार्क्स 50 से ज्यादा है या नहीं है. 80 से तो कम है, लेकिन 50 से ज्यादा होने चाहिए, तभी हम पास लिख सकते हैं. अग्रीड? Yes, ma'am. है ना? Yes, अगर ma'am. 50 से कम हुए तो हमें फेल लिखना होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो दैट मीन्स जब हम इसके वैल्यू इफ फॉल्स वाले पार्ट में जा रहे हैं, वैल्यू इफ ट्रू में तो हमने डिस्टिंक्शन कर दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो डिस्टिंक्शन हो गया. लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं थी तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 50 से बड़ी है कि नहीं है. इफ G5 is greater than 50, लेस देन 80 तो वो ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि हम इस वाले पार्ट में नहीं गए डिस्टिंक्शन वाले में. तो लेस देन 80 तो हो गया, लेकिन 50 से बड़ा है तो हम लिखेंगे पास. है ना? और अगर 50 से छोटा है तो हम लिखेंगे फेल. अब जितने पैरेंथेसिस ओपन हुए उतने पैरेंथेसिस क्लोज होने चाहिए. एंटर. मैं इसे ड्रैग करके देखती हूँ अब क्या ये मुझे सही रिजल्ट्स देगा. यस, नाउ द रिजल्ट्स आर करेक्ट. हेमा हैज गॉट डिस्टिंक्शन, जया एंड सीमा हैव फेल्ड, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड. ये चीज समझ में आई या एक बार फिर से समझाऊं? क्योंकि अभी मैंने 2 इफ लगाए हैं, अब मैं जो नेक्स्ट सवाल आपको दूंगी उसमें आपको 4 इफ लगाने होंगे. Is this clear? Or should I repeat it once again? Ma'am, it's clear. Okay. What about the rest? Clear है ma'am. Clear है. What about the boys? Aviral, Shivam, Parth, Neeraj? मैम क्लियर है. Good. Clear. चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ मैंने कहा था अब मैं कंडीशंस बढ़ा दूंगी. अब हम करेंगे ग्रेडिंग. ठीक है. अब हम वो ग्रेडिंग किस बेसिस पे करेंगे वो देखते हैं, और उसके लिए आप नेक्स्ट कॉलम में मुझे रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे. ठीक है. अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो आप लिखेंगे A+. अगर मार्क्स 90 से लेकर 80 तक है तो आप लिखेंगे A. अगर मार्क्स आपके, अच्छा हम इसे ऐसे लिखते हैं, सॉरी, 80 to 90 या 81 कर देते हैं. 81 to 90 है तो हम लिखेंगे A. अगर मार्क्स 61 to 80 है तो आप लिखेंगे B. और अगर मार्क्स 51 to 60 है तो आप लिखेंगे C. और अगर मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 50 है तो आप लिखेंगे फेल, F. ठीक है. अब हमारे पास ये 5 ग्रेडिंग करनी है हमें. Student who has got marks more than 90 should get A+. Students who have got marks from 81 to 90 should get A. Students who have got marks 61 to 80 should get B. Students who have got marks from 51 to 60 should get a C. And students who have got less than or equal to 50 should get F as their grades. ठीक है. तो अब आप
के पास 2 मिनट है, आप लोग सब फटाफट से अपने सिस्टम पे करेंगे और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखवाएंगे कि व्हाट शुड आई राइट टू इम्प्लीमेंट दिस. So you have 2 minutes with you. How to calculate the grades for these students. Are you guys doing it? हुआ किसी का? Yes, your 2 minutes are over. किसी का हुआ अभी तक? Ma'am, equals to if ब्रैकेट में G1. ओके, G1 नहीं G5 लेंगे ना, G5 में है ना मार्क्स तो. Sorry, G5. ओके, Greater than 90, greater than 90, comma, comma, apostrophe A plus, okay, good, comma, hmm, if hmm, bracket hmm. G5 greater than 80. Okay, this is Alekhya, right? Yes, ma'am. Okay. Anyone else? और किसी ने किया है? Alekhya अभी हम कंटिन्यू करते हैं. Just wait for a minute. Okay. और किसी ने किया है? Are we going right? Yes, ma'am. Okay. Who's that? Actually मैं screen change करूंगी ना तो Ma'am, फिर it's Angan. It's आंगन. Okay. तो आंगन हमने यहाँ पे if G5 greater than 80 क्यों किया? मैम क्योंकि 80 से अबव अगर होगा तो वहाँ ए आना चाहिए. वहां ए आना चाहिए. और ऑटोमेटिकली इस पार्ट में जब हम चले गए हैं तो वो 90 से कम तो ऑटोमेटिकली हो ही गया है ना. Yes, ma'am. 90 या 90 से कम में हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं. तो कर आंगन अब चुके हैं. इसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? Apostrophe A, ओके, कॉमा, comma, then again if, अगेन इफ, and then bracket G5 greater than 60.
यस अब आंगन नहीं, अब बॉयज में से कोई बताएगा मुझे अब क्या आएगा? ग्रेटर देन 60, सॉरी। यस बॉयज, किसी का नहीं हुआ? बॉयज में से किसी को नहीं आया अभी तक समझ में? Okay, any other girl apart from Alekhya and Angan? Please help me out. What should I write after this? Apostrophe B. Apostrophe B, Good. Apostrophe B. comma, Because क्यों लिखा हमने B यहाँ पे? मैम बिकॉज 60 से अबव जो होगा 61 to 80 Yes, वो आएगा। क्योंकि 60 से बड़ा है और ऑटोमेटिकली जब इधर गए हम A के बाद तो 80 से छोटा है ना? तो 61 to 80 वाले कैटेगरी में B आ गया है। कॉमा, now what should I write? if bracket G5 greater than 50 and apostrophe C. Good. Then comma if bracket G5 if bracket G5 then more less than is equal to 50 less than is equal to 50 then comma apostrophe F apostrophe bracket close. अब हमने एक गड़बड़ कर दी है अभी बेटा। Who's that? अभी कौन बता रहा था मुझे? प्रकृति। प्रकृति अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करूंगी तो वो मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? बिकॉज अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं? देखो वहां पे छोटा छोटा जो नीचे लिखा हुआ आता है वैल्यू इफ ट्रू पे है। अभी तो हमें वैल्यू इफ फॉल्स देनी पड़ेगी। अगर हम वैल्यू इफ फॉल्स नहीं देंगे तो उसके लिए वो नंबर ऑफ एंट्रीज कंप्लीट नहीं हो रही है फंक्शन की एंड इट विल गिव मी एन एरर। तो क्या करें? मैम प्रीवियस में दे देंगे फिर। कैसे, कहाँ से चेंज करूं ये बताओ? मैम इफ से, मैम ये वाला इफ। तो बैक स्पेस करूं अभी? हाँ बैक स्पेस। यस मैम। ठीक है, कहाँ तक करना है मुझे बताना बैक स्पेस? मैम कॉमा तक। इस कॉमा तक? ओके, नाउ व्हाट शुड आई राइट? एफ। एफ, परफेक्ट। क्योंकि जैसे ही वो जी से छोटा आ रहा है बस वही तो लास्ट कंडीशन थी हमारी, तो उसके बाद हमें फर्दर और कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि अगर हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक कर रहे हैं तो फिर हमें उसके फॉल्स पार्ट में भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज हमें उतने ही करने पड़ेंगे जितने हमने ब्रैकेट्स ओपन करे हैं। एंड फॉर दैट एक्सेल इज गिविंग यू अ वेरी गुड फैसिलिटी कि वो डिफरेंट कलर्स में ब्रैकेट्स ओपन करता है। तो अभी देखो मेरा ग्रीन कलर वाला क्लोज हुआ है, उसके बाद पर्पल क्लोज हुआ, उसके बाद मेजेंटा क्लोज हुआ और उसके बाद ब्लैक क्लोज हुआ। ओके, फर्स्ट वन वाज ब्लैक। तो 4 ओपन करे थे, 4 क्लोज हो गए हैं। नाउ लेट्स प्रेस एंटर। इसे हम ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी ग्रेडिंग सही हुई है। सही है हमारी ग्रेडिंग। 58 पे सी आया है, ठीक है, परफेक्ट है। 95 पे ए प्लस आया है, 74 पे बी आया है, 39 पे एफ, 78 पे बी, 66 पे बी, 48 पे एफ एंड 70 पे बी। परफेक्ट। तो हमने एकदम सही नेस्टेड इफ यूज किया, राइट? यस मैम। है ना? तो ये नेस्टेड इफ मल्टीपल टाइम्स, यहाँ तो हमने सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के केस में यूज किया है। जब आप अपने डेटा को एनालाइज करोगे ना, आप अपनी रिसर्च वाले डेटा को, तो वहां पे आपके लिए बहुत यूजफुल होगा टू सिलेक्टिवली कैटेगराइज योर डेटा कि अब मुझे ये इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि किस पे एप्लीकेबल है, क्या चीज किस पे नहीं है। तो वहां पे आप बहुत आसानी से इफ फंक्शन यूज करके और अपने डेटा में से
काट छाट कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, उसे कम कर सकते हो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। फाइन। अच्छा, अब हम दो फंक्शंस और देखेंगे इन द लॉजिकल पार्ट ओनली, एंड फंक्शन एंड और फंक्शन, ठीक है। इसके लिए जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं डेटा सेट देखती हूँ एक बार हम किस पे अप्लाई करेंगे उसे। ओके, चलो इसी डेटा सेट पे हम अप्लाई कर लेते हैं, कहीं और जाने की हमें ज़रूरत नहीं है या और डेटा नहीं बनाने की ज़रूरत। इसी में एक और एंट्री करते हैं, देन लेट्स सी 2 more logical functions, and function and or function. Let me go back to my Excel sheet. इसे हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे अटेंडेंस और डालते हैं कि किस बच्चे की कितनी % अटेंडेंस थी। ठीक है, ये मैं ऐसे ही आर्बिट्ररी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ठीक है, ये अटेंडेंस की परसेंट है। Kiasha got 70% attendance and Hema got 92, Nina got 99, Seema got 23. These are their attendance. ठीक है, अब लेट्स से इंस्टीट्यूट का एक रूल है कि दो स्टूडेंट्स who have got grades as either A or E, let's say, या फिर कहते हैं हम who have got more than 90% marks, ठीक है, या फिर हम यही देख लेते हैं more than 90 में A+ ही था, who have got grade as A+ and whose attendance is greater than 90, then they will get a medal। ठीक है, दोनों कंडीशन जिनकी फुलफिल हो रही है, जिनका ग्रेड A+ है और अटेंडेंस भी 90 से ज्यादा है, दैट मीन्स मार्क्स भी 90 से ज्यादा है, अटेंडेंस भी 90 से ज्यादा है, तो दे विल गेट अ मेडल। दूसरी कंडीशन ये है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी या तो ग्रेड A+ वाली कैटेगरी में है या अटेंडेंस A+ वाली कैटेगरी में है, मतलब या तो उनके मार्क्स 90 से ज्यादा है या उनकी अटेंडेंस 90 से ज्यादा है, तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो दो बातें हैं हमारे पास। पहले हम पहली चीज करते हैं कि मेडल किसे मिलेगा। मेडल उसे मिलेगा, उस स्टूडेंट को मेडल दे रहा है इंस्टीट्यूट जिस स्टूडेंट की मार्क्स 90 से ज्यादा है, ओवरऑल परसेंटेज इज मोर देन 90 and attendance is also more than 90, then they will get a medal। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, आई एम सेइंग मार्क्स और द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 एंड अटेंडेंस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90। ठीक है, ऐसे अभी तो मैंने 2 लगाए हैं, ऐसे 3, 4, 5, 6 कितने भी क्राइटेरियाज आप हो सकते हैं, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी हम उसे पास कर रहे हैं या उस कंडीशन को मान रहे हैं, तभी रिजल्ट उसका ट्रू आना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास एक फंक्शन होता है नोन एज एंड फंक्शन। ठीक है, एंड मींस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, मार्क्स भी 90 से ज्यादा है और अटेंडेंस भी 90 से ज्यादा है, तो हम मेडल देंगे। तो हम वो एंड फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सो इक्वल टू यू विल राइट एंड ब्रैकेट ओपन,
फर्स्ट लॉजिकल क्या है? दिस मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 90। और दूसरा लॉजिकल टेस्ट हमारे क्या है? अटेंडेंस शुड बी ग्रेटर देन 90। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी एंड फंक्शन मेरा ट्रू रिजल्ट देगा। इसे मैं नीचे ड्रैग करती हूँ, सब में कॉपी होगा फॉर्मूला। सी, सो नाउ आई हैव गॉट जस्ट वन ट्रू। सिर्फ हेमा को मेडल मिल सकता है क्योंकि उसके मार्क्स भी ग्रेटर देन 90 है और उसकी अटेंडेंस भी ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, किसी और की भी अब हम चेंज करके देखते हैं। मैं ऐसे आर्बिट्ररीली चेंज कर रही हूँ, डोंट गो बाय द फॉर्मूला। लेट्स से इसके मार्क्स हमने 95 कर दिए लेकिन इसकी अटेंडेंस 79 थी, तो दोनों कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं हो रही, तो इसे मेडल नहीं मिलेगा रोहित को। ठीक है, whereas अब मैं नीना पे जाती हूँ, नीना के मार्क्स कर देते हैं हम 91। अब नीना को भी मेडल मिलेगा क्योंकि उसके मार्क्स 90 से ज्यादा है और उसकी अटेंडेंस भी 90 से ज्यादा है। लेट्स अज्यूम कि उसकी अटेंडेंस सिर्फ 76 थी, तो उसको मेडल नहीं मिलेगा। ठीक है, जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यहां भी 90 से ज्यादा है परसेंटेज में और अटेंडेंस भी 90 से ज्यादा है, तो हम मेडल दे रहे हैं, अदरवाइज हम मेडल नहीं दे रहे हैं। अब हम दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं फॉर गिविंग अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट उन बच्चों को मिल रहा है जिनके या तो मार्क्स 90 से ज्यादा है और देयर अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 90। नाउ आई एम सेइंग और कुछ भी अगर एक चीज ज्यादा है या दोनों चीजें भी ज्यादा हैं तो हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, जब हमें ऐसी कंडीशंस चेक करनी होती है वेयर एनी वन ऑफ आवर लॉजिकल टेस्ट passes, any one of our logical test holds true, तो रिजल्ट हमारा ट्रू आना चाहिए। सर्टिफिकेट हम तब भी दे देंगे जब परसेंटेज ज्यादा होगी, सर्टिफिकेट हम तब भी दे देंगे जब अटेंडेंस ज्यादा होगी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास लॉजिकल फंक्शन होता है और। ब्रैकेट ओपन, पहला लॉजिकल टेस्ट है मेरा परसेंट शुड बी ग्रेटर देन 90। दूसरा लॉजिकल टेस्ट है मेरा अटेंडेंस जहां पे लिखी हुई है दैट शुड बी ग्रेटर देन 90। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। Here you can see there are more trues now। ठीक है, क्योंकि हेमा की तो परसेंट और अटेंडेंस दोनों ही 90 से ज्यादा है। रोहित के केस में percent is greater than 90, attendance is not greater than 90, still he will get a certificate because his percent is greater than 90। नीना के केस में again percent is greater than 90, so she will also get। हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसकी अटेंडेंस ग्रेटर देन 90 कर देते हैं, परसेंट लेस देन 90 कर देते हैं, तो भी उसे मिल रहा है कि अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। ऐसी कंडीशंस जहां हमें चेक करनी है वहां हम और लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन जहां हमें चेक करनी है जहां सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हो तो हम एंड यूज करते हैं। नाउ दीज एंड एंड और कैन बी यूज्ड इनसाइड योर इफ ऑल्सो। तो जो हमने नेस्टेड इफ लगाया था उस नेस्टेड इफ को लगाने की जगह हम वहां एंड और भी यूज कर सकते थे। ठीक है, नाउ दिस इज अ फूड फॉर योर थॉट, हाउ कैन यू यूज इट, वो अब आप करके देखोगे। और जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी आप लोगों का इन द कमिंग 3 days, आई विल ऑल्सो टेक अ फ्यू अदर टॉपिक्स, देन आई आस्क यू कि ये आप लोगों का खत्म हुआ कि नहीं, अदरवाइज विल डू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज यू हैव टू डू दिस। ठीक है, मैं ये स्क्रीन शेयर करती हूँ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैंने सवाल बोला है वो आप लोगों को करके रखना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी तो आई आस्क यू कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेस्टेड एफ हाउ कैन यू राइट डाउन दीज ग्रेड्स यूजिंग एंड और।
Is the question clear? Yes, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is the question clear, or should I again explain the question to you? No, ma'am, it's clear. Okay, fine. So that's all for today. Now we'll meet again on Thursday. Tomorrow you will not have a session because tomorrow is a holiday. ठीक है, तो थर्सडे को फिर से हम लोग वही 2 से 4 तक मिलेंगे, है ना? And in the coming sessions, the various other topics that we'll be discussing with you, or I think next session में VLOOKUP, HLOOKUP और वो सब करेंगे आप लोग, and this absolute and relative addressing. So those topics are really interesting and they are useful from your वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वी लुकअप, एच लुकअप और इन सब का आपको काफी यूज आएगा. देन वील सी वेरियस अदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग और वो सब भी देखेंगे. ठीक है, तो सो सी यू ऑन Thursday at 2 p.m. again. Sir, can we close this now? Yes, ma'am. We can close. है ना? ठीक है सर. ठीक है बच्चों. So thank you all. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, beta. Now you can leave.